जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको खैरियत से ही रखे। जी, आज हमने अपना एनिलिडा को कंप्लीट करना है। थोड़े बहुत पॉइंट्स रह गए थे। डाइवर्सिटी, once again I am at chapter number 9, diversity among animals, and phylum Annelida is my today's topic. In the remaining part of the phylum Annelida, I am going to discuss. But before discussing the remaining points of the phylum, first of all, I want to have a quick review from all of you from the last lecture which I've given about the annelids. So, which is the special character of phylum Annelida? So, who is going to tell me that which is the special character of the phylum Annelida? The very special character of phylum Annelida is metamerism, and which kind of coelom present in this phylum, being the being the protostomes, they have a schizocylus type of coelom, and there are true coeloms as well. And what is metamerism? Repetition of the organs throughout throughout the body segments is called as metamerism. And how would you relate segmentation and metamerism? So yeah, जवाब आप खुद देंगे इसका. Name some common examples of phylum Annelida. आप खुद जवाब देंगे. What are the structures necessary for the locomotion of annelids? So आप चेक कर लें कि क्या आप इन सवालों के जवाब दे सकते हैं या नहीं. So then let's go for the further topics. So, a quick review once again, a recap of the last lecture: segmented worms and triploblast, coelomates, bilateral symmetrical, muscular body, metamerism, metanephridia. Now, today in my today's lecture, I'm going to discuss the metanephridia, developed reproduction system, reproductive systems, and the complete digestive system. This I have already discussed in the last lecture that it has a complete tube-like digestive system starting from the mouth and ending in the anus. So, annelid locomotion. Once again, I want to share these points with you all. Once again, that the body is made up of two different kinds of muscles. One is these are the circular muscles, and these are the longitudinal muscles. Let me take the pointer first. Yeah. So this is the muscular body. Its body is muscular, and this is the circular muscles, and these are the longitudinal muscles. Both these muscles, they contract and relax antagonistically, and this will result in the forward motion of the organism. That is what's called as an elida. So the contraction of the circular muscle resulting in the elongation of the body, and contraction of the longitudinal muscles is resulting in the thickening and the shortening of the body, moving the organism in forward direction with the help of CT. Whenever longitudinal muscles get contracted, the bristles or the CT, they get anchored into the soil, which is going to help them in preventing the backward the movement of the body, and also helping in the extension and the dragging of the remaining part of the body. And then extension of the body by contraction of circular muscles, long and thin. Body will become long and thin, circular muscles. And this will help in the forward movement of the body, anchoring of the body as well, and extension of the body of the longitudinal muscles. This will help you in making the body short and thick. So this is the recall of this topic. And then excretion. So my today's topic is basically excretion. Excretion is with the help of nephridia, protonephridia. Let me see another diagram to show you. Yeah, in this figure you can see low. Yes, this is these green structures. These green structures are basically called as the metanephridia. This organism have a pair of metanephridia in each segment. I'm repeating the sentence. A pair of metanephridia present in each segment means the cleaning of the each segment is with the help of these metanephridia. हर एक segment के पास they have a separate pair of metanephridia for the cleaning of the coelom from the the nitrogenous waste. ठीक है, तो ये जो आपको ओपनिंग से नजर आ रही है, दिस इज नेफ्रोस्टोम. दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज नेफ्रोस्टोम. और ये तो दरमियान में इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है. डॉर्सल एंड वेंट्रल ब्लड वेसल्स आई हैव शोन यू in my last lecture, and that is the ventral nerve cord. So in that layer, that pinkish ये जो peach color की एक layer नजर आ रही है, that what is called as the segment of the body. Now look at the body over on the whole. So this is once again the blue line indicating you the ventral nerve cord. These red colors are the red color rings are showing you the closed circulatory system, and in between that tube there is we can see the digestive system. जो यहाँ पे भी label है, and we have already discussed it as well. Okay, the next figure is, yeah, look at this. This is my favorite figure. देखते हैं इसको, इसमें क्या खास बात है.
इसमें ख़ास बात ये कि ये देखो ये नेफ्रोस्टोम है, नेफ्रोस्टोम यहाँ से एंटर हुआ और इस वाले में पूरा नेफ्रीडिया इज प्रेजेंट इन द नेक्स्ट सेगमेंट, मींस द क्लीनिंग ऑफ दिस nephron sorry segment is responsibility of this metanephridia. The cleaning of this coelom, this segment, is responsibility of this of the next of the metanephridia which is present in the next consecutive adjacent सेगमेंट. सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि नेफ्रोस्टोम यानी कि इसका सारा सीलोम इसके अंदर चला जाएगा, और सीलोम इतना लंबा और लॉन्ग है एंड कैपिलरी से लाइंड है कि इसमें से सारा ज़रूरी मटेरियल जो है वो दे विल एब्जॉर्ब इन द कैपिलरीज एंड देन ओनली द वेस्ट प्रोडक्ट द यूरिन द यूरिया वो जो है वो इसके अंदर चला जाएगा, इस वाले के अंदर. यहाँ से देखो ये आ रही है ट्यूब, ये रेक्टम लास्ट पार्ट जो होता है, और फिर ये इसका नेफ्रोस्टोम है, सॉरी ये नेफ्रीडियोपोर है जिससे जो हर सेगमेंट पे प्रेजेंट होगी, ये नेफ्रीडियोपोर जिससे ये अपना एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर एक्सपेल आउट कर देगा. ठीक है. तो दिस वॉज इट्स एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कि प्रेजेंट है इसके अंदर. और ये यहाँ पे देखो बहुत क्लियरली नजर आ रहा था, ये मैंने फिगर एक और ली तो जस्ट टू टेल यू द ciliated funnel nephrostomy, then the whole of the the metanephridia and its opening for along with showing you a segment between them, between the two segments. ठीक है ना, a segment septum present between the two segment. This is very interesting to note. जो मैं आपको बता दी कि हर segment में organs repeat हो रही हैं, तो excretory system is one of the beautiful example of repeating of the organelles that showing you that they have metamerism. देन इज द फीडिंग. फीडिंग में ये डेट्राइटिवोर्स हैं, दोनों सारी फिगर्स ले लेते हैं. यहाँ से शुरू करते हैं. दीज आर डेट्राइटिवोर्स. Detritus eater. Now, what is a detritus? Detritus is actually the gunwala, the matter, decaying matter, whatever the matter present on the surface of the earth. जो surface पे पड़ा हुआ है ना, जमीन की surface पे पड़ा हुआ है, litter, पत्ते वगैरह और कचरा वगैरह इस तरह की चीज़ें पड़ी होती हैं ना ज़मीन के ऊपर. किसी गार्डन में लॉन में आपने देखा तो नीचे वहाँ पे उस ज़मीन पे लीव्स पड़े हुए हैं, कोई सॉइल में इंसेक्ट्स होंगे, कोई टूटियाँ मूटियाँ रहती हैं, है ना. इसी तरह द बॉटम ऑफ द वाटर एज वेल have the the detritus over there as well. The dead bodies of the animals, the waste, all these things are called as detritus. So they are basically detritus feeder, गंदुला खाने वाले हैं. ठीक है ना. तो अर्थवर्म को तो आपको पता ही, वो तो खाते ही सॉइल है. So these are detritus feeders, detritivores. Please make it clear in your minds. ठीक है ना. For example, wood lice and earthworms often start the process of decay by breaking plant tissues into smaller pieces, and decomposers are the bacteria and fungi that make things rot. अब वो क्या कर देते हैं, डिकम्पोजर्स भी हेल्प करते हैं, इनको भी खाने में हेल्प कर देते हैं, कुछ चीज़ें इनके लिए सॉफ्ट भी कर देते हैं. और फर्दर डेट्राइटिवोर्स एक अलग फूडिंग फीडिंग हैबिट है, एंड डिकम्पोजर्स दे आर ऑब्वियसली टोटली डिफरेंट थिंग्स. And then the annelids are detritivores which feeds on dead organisms and organic matter. ठीक हो गया. तो जो भी कचरा मचरा सा पड़ा हुआ है ऑर्गेनिक होना चाहिए बस. ठीक है ना. प्लास्टिक नहीं खाएंगे. ऑर्गेनिक शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक एंड इट इज़ अबाउट टू डिके. सो वो चीज़ें इनकी फूड होती हैं. सो फ्री लिविंग में जो है, अगर इंडिपेंडेंट फीडिंग है ऑब्वियसली, जैसे अर्थवॉर्म है, तो पैरासिटिक में है जी, होस्ट पे डिपेंड कर रहे हैं. तो ये वाला जो ग्रुप है, लीच, लीच की फीडिंग मैंने आपको बताया था कल भी, दे फीड ऑन ब्लड. ठीक है ना. वर्टिब्रेट्स ब्लड, तो ये वर्टिब्रेट्स का ब्लड करती हैं, इसलिए दीज आर कॉल्ड एज एक्टोपैरासाइट्स. इनकी फीडिंग टाइप और कोई नहीं है. वर्टिब्रेट्स में शार्क्स पे, कैटल्स पे, जो भी पानी में और एनिमल्स, बड़े एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी से चिपक जाती हैं. इनको हटाना काफ़ी मुश्किल है. कल भी मैंने आपको बताया था कि जैसे स्नेक बाइट करके हटे तो 2 होल्स बन जाते हैं, लेकिन जहाँ से लीच बाइट करके हटती है, इसके 3 ट्रायंगुलर टीथ होते हैं, ट्रायंगल पोजीशन में ये हटती है, तो वहाँ 3 डॉट्स पड़े हुए होते हैं, ट्रायंगल से बना हुआ होता है. और ये अपनी बॉडी से कई गुना ज़्यादा ब्लड सक कर लेती है. एंड वी हैव, आई ऑल्सो हैव गोन थ्रू एन एक्सपीरियंस ऑफ इट्स डाइसेक्शन. वो फल्ला ज़िंदगी की गंदी तरीन डाइसेक्शन मेरी इसकी लीच की थी. और मतलब जब इसके अंदर एंटीकोएगुलेंट सिक्रीट होते हैं ना, वो बहुत स्टिकी म्यूकस लाइक मटेरियल होता है, ब्लड में सिक्रीट करती है ना, ताकि इसका जो ब्लड है जो पी रही है वो कोएगुलेट ना हो जाए ना, वो उसको एंटीकोएगुलेंट सिक्रीट कर देती है, जिसकी वजह से फिर वो जमता नहीं है. तो अब क्या होता है कि
तो मैं आपको बता रही थी कि सबसे मेरी बुरी डायसेक्शन मेरी ज़िंदगी में, हाल बहुत ज़्यादा बीएससी में डायसेक्शंस की थी, एमएससी में बहुत सी डायसेक्शंस की थी, लेकिन लीच की डायसेक्शन मुझे कभी भी नहीं भूलती और मुझे हमेशा याद रहता है कि दैट वाज द वर्स्ट एक्सपीरियंस एवर। हमें इतनी वॉमिट आती थी। एनीवेज चलें आगे चलते हैं। फिर जी एनालिडा रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन पे आगे जी सेक्सुअली हर्माफ्रोडाइट्स हैं, ठीक है। एज फार एज अर्थवॉर्म्स आर कंसर्न दीज आर हर्माफ्रोडाइट, यानी कि बोथ मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप, ठीक है। मोस्टली सेक्सुअल, सम यूज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड हैव सेपरेट सेक्सेस। अर्थवॉर्म्स एंड लीचेस आर हर्माफ्रोडाइटिक बट रेयरली फर्टिलाइज देयर ओन एग्स। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये कि होते तो हर्माफ्रोडाइट हैं, मेल और फीमेल दोनों एक ही सेक्स में, एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, मगर ये आपस में कभी भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करते। क्यों? प्लॉट एंट्री होती है। मेल्स जो है, आई मीन जो स्पर्म्स प्रोडक्शन है वो पहले हो जाती है, स्पर्म्स पहले मेच्योर हो जाते हैं और इनकी एग्स जो हैं वो बाद में मेच्योर होते हैं। सो दैट्स द रीज़न ये आपस में फर्टिलाइज नहीं कर पाते। ये जो स्ट्रक्चर अर्थवॉर्म में नजर आया था, हमने देखा था पहले भी, क्लाइटेलम था, ठीक है ना, ये क्लाइटेलम था। क्लाइटेलम एडहेसिव सिक्रीट करता है, जिससे दोनों बॉडीज आपस में स्टिक हो जाती हैं और एक दूसरे के अंदर एडहेसिव। इसी क्लाइटेलम के अंदर दो ओपनिंग्स हैं, एक पिछले फिगर में मैंने को पिछले लास्ट लेक्चर में दिखाई हुई थी, वहाँ से ये रिसीव करते हैं स्पर्म्स, ठीक है ना। स्पर्म्स रिसीव करने की सिर्फ एबिलिटी है इनके अंदर, क्योंकि ये ओवरीज को पता है थोड़ा सा लेटर ऑन मेच्योर होंगी ना, तो ये रिसीव कर लेते हैं। Any two earthworms can mate by joining together and fertilizing each other's eggs. हम एक दूसरे के eggs वो fertilize कर लेते हैं अब. Later, a tube of mucus secreted by the clitellum, and clitellum forms an egg case which splits off the body of the worm. अब वो उसमें से जो भी दोनों फीमेल्स के साथ सेम ही होगा, वो दोनों एक म्यूकस पैक सिक्रीट करती हैं, वहीं से वो जो ओपनिंग्स हैं वहीं से उसके अंदर इनके एग्स होते हैं, फर्टिलाइज्ड एग। और इस ये आस्ता 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 देख रहे हो बाहर को निकल रहा हो, ये देखो यहाँ से इसकी बॉडी से पूरा का पूरा उतर गया। उतरने पे इसके अंदर यंग वॉर्म्स हैच आउट इन द सॉइल। ये इसके यंग वॉर्म्स हैं। यंग वॉर्म्स के ऊपर अभी एक कवरिंग चढ़ी हुई है, जिस कवरिंग का नाम है कोकून, ठीक है ना। कोकून, आपने कभी कॉकरोच के अंडे देखे हैं ब्राउन से कलर के, लंबे लंबे से, वो भी कोकून कहलाता है। तो ये भी कोकून से होते हैं, मगर ये म्यूकस का बना हुआ होता है। तो थोड़ी देर में ये ड्राई अप होकर ख़त्म हो जाता है और ये इसमें से अर्थवॉर्म या कोई भी जो भी जिसका भी है वो बाहर निकल आता है। लीच और अर्थवॉर्म इस कोकून फॉर्मेशन करते हैं, नीरीज कोकून फॉर्मेशन नॉर्मली नहीं करती। अच्छा, सो ये तो होगी इनकी फर्टिलाइजेशन। लीचीज एंड अर्थवॉर्म्स आर hermaphrodites. नीरीज इज यूनिसेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। उनकी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, इनकी फर्टिलाइजेशन दोनों की कैसी है? इंटरनल है, और दोनों hermaphrodites भी हैं। ओके, फिर जनाब और क्या बात है इसके अंदर? ऑल दो वर्म्स, अच्छा अब इसके अंदर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी है, तो मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन एज फार एज अर्थ फॉर्म्स आर कंसर्न, अर्थ फॉर्म में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। हाँ, कुछ छोटी मोटी फ्यू सेगमेंट्स अगर डैमेज हो गई तो वो फ्यू सेगमेंट्स को डेवलप कर सकता है, अदरवाइज अपनी पूरी बॉडी, ये नहीं होगा कि जो छोटा सा पार्ट बचा बचा है उससे वो अपना पूरी बॉडी अर्थ फॉर्म पूरा डेवलप कर लेगा। नो, ऐसा नहीं हो सकता। So although worms can regenerate small portions of their bodies, ठीक है ना, they do not reproduce this way. So they do not have, by the way, they do not reproduce asexually. फ्रॉम हर्माफ्रोडाइट्स टू म्यूकस कोकून्स, आपने देखा ना म्यूकस के बने हुए कोकून्स थे, पैकेट थे छोटे छोटे। एंड अर्थवॉर्म रिप्रोडक्टिव हैबिट्स आर मोर फैसिनेटिंग देन द मिथ्स, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव हैबिट्स उसकी काफ़ी डिफरेंट और डिफिकल्ट हैं, यू कैन से। नाउ दिस इज अर्थवॉर्म, मैंने आपको दिखानी थी बेसिकली। इसमें मैंने आपको क्या दिखाना था? मैंने दिखाना था आपको इसके अंदर इसकी रिपीटिशन इन द सेगमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखो कि ये देखो 4 सेगमेंट्स में रिपीट हो रहे हैं। स्पर्मेथीकी पड़े हुए, स्पर्मेथीकी क्यों बने हुए हैं? क्योंकि स्पर्म्स रिसीव किए ना, कहीं जमा करने हैं, तो इन पैकेट्स के अंदर वो अपने वो स्पर्म्स को रिसीव कर लेते हैं। तो फिर स्पर्मिड्यूकल फनल्स हैं, फिर टेस्टीज सैक्स विद टेस्टीज एंड सेमिनल वेसिकल्स, यहाँ नज़र नहीं आ रही लेकिन 2 टेस्टीज ये हैं, और 2 टेस्टीज ये वाली, ये डार्क कलर की जो नज़र आ रही हैं आपको। और फिर इसके बाद ये ओवरीज हैं, ये 2 ओवरीज हैं, ठीक है ना, ये ओवेरियन फनल है। और एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं यहाँ पर, ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स यानी कि देखो पूरा है, और हर सेगमेंट में चीज़ें रिपीट हुई हैं। 2 दफ़ा टेस्टीज आई हैं, जिनके 2 सेगमेंट्स में, हर सेगमेंट में 2-2 पड़ी हुई हैं। फिर ओवरी भी इसमें पड़ी हुई है, और सारा स्पर्मेथीक की जगह रिपीट हो रहा है। सो एक्सक्रीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इसका, उसकी एग्जाम्पल है। किसकी एग्जाम्पल है? इस बात की एग्जाम्पल है कि इसमें मेटामेरिज्म है। तो ये तो बता ही चुकी हूँ आपको, हर्माफ्रोडाइट और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है हमेशा। इसमें ओवरीज और टेस्टिस एक साथ दिखाई नजर आ रही हैं, मगर छोड़िए, ये तो आपको समझ तो आ गया ना आपको कहानी। अ वार्म एग हैज़ 4 बेबी वार्म्स, जो भी वो खून निकलता है उसके अंदर 4 एग्स होते हैं।
एंड हाउ मेनी बेबी वॉर्म्स आर देयर इन 5 eggs? क्वेश्चन है आपके लिए. अ वॉर्म lays 1 egg every 7 days. बड़ी जल्दी जल्दी अंडे बच्चे दे देते हैं. ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट. ठीक है जी, डायरेक्ट भी डेवलपमेंट भी होती है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होती है. अगर तो दरमियान में बहुत सारी मेटामॉर्फोसिस की स्टेजेस हों, मींस कि जो आपका लार्वा है बहुत सारी, इफ द डेवलपमेंटल एग एंड अप टू द अडल्ट, अगर इनके दरमियान में बहुत सारी लार्वल स्टेजेस हैं, देन इट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. व्हेन बट इफ इट इज द अडल्ट, द एग इज लुकिंग लाइक दैट ऑफ द अडल्ट, तो हमसे कहते हैं डायरेक्ट मेट डेवलपमेंट. तो with lots of nourishing yolk is present, embryos develop into a miniature adult. Direct development की definition है ये. When little yolk is present, young develop into larval stages that can feed. Indirect development, जब थोड़ा थोड़ा खाना present होता है ना, तो available होता है, तो वो बहुत सारी larval stages चाहिए होती हैं. लेकिन अगर तो खाना available है ज़्यादा सा, तो फिर वो जल्दी से बड़े हो जाते हैं. और वैसे भी जो egg की shape होती है वो normally adult से काफ़ी similar होती है. फिर यहाँ पर ये है जी इसका ट्रोकोफोर लार्वा, द वेरी कैरेक्टरिस्टिक लार्वा. यही लार्वा मैंने आपको मोलस्का में भी बताया था कि ये जो लार्वल स्टेज है ट्रोकोफोर, काइट शेप ये लगता है. ये इसकी सीलिएटेड ओपनिंग है, ये इसका माउथ है, ये भी सीलिया है, ये भी सीलिया है, और ये इनस है. फ्री लिविंग लार्वा है, ये लार्वल स्टेज है. मोस्ट मोलस्क एंड एनिलिड्स हैव दीज काइंड ऑफ लार्वा. इसको देख के लगता है कि ये बड़ा होकर वॉर्म बन जाएगा, है ना. कितना डिफरेंट है, मतलब उनकी हिम्मत है कि उन्होंने ऐसे सारे बच्चे जमा कर लिए होंगे और फिर बाद में उनको सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस चेक की होंगी, वेदर इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू विच ऑर्गेनिज्म. सो डेवलप्स फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग, और ये फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप हुआ, सीलिएटेड होता है और ये फ्री स्विमिंग भी होता है. ठीक है, द ट्रोकोफोर लार्वा इज अ वेरी वेरी स्पेसिफिक larval stage present in the annelids. So annelid का ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो बता ही चुकी हूँ. annelids जो हैं रिजनरेशन होती है, इंजर्ड पार्ट की रिजनरेशन कर लेता है अर्थवॉर्म भी, मगर एस्पेक्ट्स अभी भी पता नहीं है कि रिजनरेशन होती कैसे है. फिर यहाँ पे है कि एवरी एनिलिड हैज सेवरल फंक्शनली आइडेंटिकल बॉडी सेगमेंट्स. ये तो बात पता चल गई मेटामेरिज्म है. दिस डिजाइन हेल्प्स रीजनरेशन. इट इज़ वेरी इजी टू रिप्लेस लॉस्ट एंड डैमेज सेगमेंट्स. ठीक है, ये हो गया, ये लॉस्ट एंड डैमेज सेगमेंट यूँ इसी तरह टूट गया. यहाँ से टूटने पे इसने भी अपना पार्ट डेवलप किया, इसने भी डेवलप किया है. और जो नीरीज है उसमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है थ्रू फ्रेगमेंटेशन, लेकिन बाकी ग्रुप में कहीं पर भी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है. नाउ दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द अर्थवॉर्म. सो बाय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं अर्थवॉर्म्स को. अर्थवॉर्म्स आर कॉल्ड एज फार्मर्स फ्रेंड. सॉइल की फर्टिलिटी को कहते हैं. जो प्लोइंग आपने की पढ़ते हैं ना, गोडी करना सॉइल की, तो ये बीच में घूमते रहते हैं सॉइल के, तो सॉइल में स्पेसिस क्रिएट होती रहती हैं, और तो वहाँ पे एयर के लिए स्पेस बन जाती है ना. तो दे आर वेरी हेल्पफुल इन एरेटिंग इन पोरोसिटी, इन इंक्रीजिंग द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल. एंड फिर जो ये सॉइल ही खाते रहते हैं, उसमें से ऑर्गेनिक मटेरियल खाते रहते हैं, उनकी बॉडी में से निकलता रहता है, तो वो जो बॉडी में से गुजर के आता है वो ज़्यादा रिच हो जाता है, न्यूट्रिशियस हो जाता है सॉइल के लिए, सॉइल के लिए ह्यूमस बन जाता है. They increase the organic content of the soil by dragging plant material into their burrows, and they are used as bait. फिश पकड़ने के लिए इसको बेट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है. Some communities feed on earthworm, और कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो earthworm का फूड भी लेती हैं, और कुछ हैं जहाँ पे ये ड्रग्स भी बनती हैं इनसे. फिर जी जो आपके पास नीरीज है, ये आपका एक अदद नीरीज है. नीरीज फूड चेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. एक्वाटिक इन्वायरमेंट में ज़्यादातर होता है, तो ये क्लोज टू एक्वाटिक इन्वायरमेंट होता है, तो ये ज़्यादातर फूड चेन का पार्ट है. अर्थवर्म भी फूड चेन का पार्ट है. इनके छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं ये, और ये बड़े इनको एज फूड यूज़ करते हैं. और लीच को तो इसको हिरिडू मेडिसिनालिस इसका नाम रख दिया गया था. एक्टोपैरासाइट तो ये है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये जैसे किसी के में बैड ब्लड जमा हो जाता है या पस जमा हो जाती है, तो इसको वहाँ लगा देते हैं, ये सब कर लेती है ना. तो जैसे बॉडी से डेड सेल्स निकल जाते हैं तो बहुत रिलीफ होता है बॉडी को. तो ये बहुत टाइम तक इस तरह इसको यूज़ किया जाता रहा कि बैड ब्लड बॉडी से सक करने के लिए इसको यूज़ करते थे लीच को. इसलिए इसको इसकी मेडिसिनल इम्पोर्टेंस भी है, हिरिडू मेडिसिनालिस. ओके जी, आई थैंक यू ऑल फॉर द पेशेंस लिसनिंग. आपको कोई भी क्वेश्चन है आपने मुझसे ज़रूर पूछना है, और मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल से बताया है ताकि कोई भी और पॉइंट भी हो ना, बच्चे को कम से कम उस एक चीज़ का स्ट्रक्चर और फंक्शन कम्प्लीटली पता ज़रूर होना चाहिए. जब आपको पूरी एक बात पता होगी ना, तब थोड़ा थोड़ा बहुत आपको उसमें से कुछ याद भी रह जाएगा. चलिए, ओके, इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.